saw 500. जब हम 500 हुए When तो we मैं were 1000 500, देखता I था। saw 1,000. अब जब हम 10,000 हैं When we are तो मैं 10,000, स्टेडियम्स भरे हुए देखता हूँ I यीशु see के नाम में। stadiums filled in Jesus' name. आमेन। और आपको एक गुड न्यूज़ दें, And there's a good news. बहुत जल्दी Very soon, वी आर बिलीविंग हम मान रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स कुछ महीनों में वी विल गो टू आवर न्यू लैंड एंड वर्शिप द लॉर्ड। कुछ ही महीनों में हम अपनी नई भूमि पर जाएंगे और आराधना करेंगे। आमेन। बिल्डिंग का वेट करना है या ओपन में चलें? टेल मी। God has, I think God has removed the walls from this church. मुझे लगता है परमेश्वर ने दीवारें हटा दी हैं इस कलीसिया से। Amen. I'm telling you, before this year ends, there will be, you will see 40,000 people worshiping Jesus in the new land. इस साल के खत्म होने से पहले आप 40,000 लोग देखेंगे नई लैंड पे आराधना करते हुए। Amen. Do you know you cannot believe anything without your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के बिना कुछ भी नहीं मान सकते। That's विश्वास what many people don't understand. They think faith is मान लेना। हाँ, मान लिया। Yes. No. Faith is not just mental agreement. Faith is to see the unseen before it becomes seen. बहुत से लोग समझते हैं विश्वास faith is just to say yes I agree but it's not. वो देख लेना है जो अदृश्य है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, So I invite you प्रभु आपको वो दिखाए जो मैं देख रहा हूँ अभी। that God shows you what I am seeing. आपने देखा अभी हम रांची गए थे, You saw me 5 when लाख Ranchi. लोग, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला इतने लोग मैंने देखे ही नहीं आज तक। We were in Ranchi recently. 5 lakh people were there, and the health minister said, "I have not seen so many people till date." हाँ, परमेश्वर का राज्य फैल रहा है The kingdom of God is और कोई expanding, इसको रोक नहीं पाएगा। and no one will be able to stop it. कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। No one will be able to stop it. आमेन। और अभी बहुत जल्दी हम राउरकेला जा रहे हैं Very soon we'll go to Raurkela, और वहां पे हमें बता रहे हैं 7 लाख लोग आ रहे हैं। and they're saying 7 lakh people will gather there. आमेन। कुछ लोग बोलते हैं आप क्या क्रिश्चियन बना रहे हो? हम कहते हैं नहीं, हम क्रिश्चियनों को वापस ला रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। Some people say, "Are you converting to Christians?" And we say, "No. We are bringing Christians back into the kingdom." We are converting the Christians. हम Christians को convert कर रहे हैं। हाँ, हम ईसाइयों को वापस पिता के प्रेम में ले जा रहे हैं। We are bringing Christians back to the love of God. Hallelujah. Amen. Okay. Last, and then we'll close, and then we'll pray for you. 1 Samuel 16:7. पहला शामुएल 16 उसका 7। The Bible says, "Man looks at the outward appearance, बाइबल but कहती the है Lord looks at the heart." मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। Do you know you are limited by your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के कारण सीमित हैं। If you have a business, your business is limited by your imagination. अगर आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस आपकी कल्पना की वजह से सीमित है। Hear this. सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप? If you can see it, you can possess it. अगर आप देख सकते हो तो कब्जा कर सकते हो। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? If you can see it, अगर आप देख you सकते can हो possess it. तो आप कब्जा कर सकते हो। So when you pray, your prayer should be, God, show me what my answer looks like. Not कि प्रभु दे दे। जब आप प्रार्थना करते हो तो कहो पिता मुझे दिखाओ कि मेरा उत्तर कैसा दिखता है, ये नहीं कि God give me. Vague prayers usually don't get answered. जो ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका अक्सर उत्तर नहीं मिलता है। Sometimes people come and say, "Pastor, can you pray for me, Pastor?" कई बार लोग कहते हैं पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करोगे? Yes, sister. What हाँ should I बहन, pray for you? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Anything, Pastor. Anything. कोई भी चीज प्रार्थना कर दो। That's a waste of time. समय बर्बादी है ऐसी प्रार्थना करना। एक अंधा यीशु के पास आ रहा है, अब हे blind- यीशु, दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर। अंधा है वो। A blind man comes to Jesus, "Oh
Son of David, have mercy on और me. यीशु क्या कह रहे हैं उनसे? And what is Jesus saying? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I should do for you? अरे यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है भाई वो. Jesus, can't you see he is blind? No. You have to be specific about what you want God to do for you. आपको सटीक रूप से पता होना चाहिए क्या चाहते हो आप जो परमेश्वर आपके लिए करे. एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते. डॉक्टर पॉल योंगी चो. You can वो read about a एक man of God. बुद्धिस्ट थे. वो मर रहे थे. उनको क्या बोलते हैं ये, ट्यूबरक्लोसिस था. लास्ट स्टेज मर रहे थे. एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए. एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड. कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं. 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में. Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, और आज and there are 14-15 lakh members in his church. और वो चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में. And the church started in slums. उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था. नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे. He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनेयर से ज्यादा. और एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको. And one time the Korean government had an economic crisis and the church said we will help you. Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ, religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना. It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है. हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह The जाएगी. church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया. The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं. एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो 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 ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया. एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज होकर कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया. एक्लीसिया मीन्स द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस. जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुलाया है, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको चर्च बोलते हैं. ओके. सो जब ये जो पॉल योंगी चो थे, जब ये प्रभु में आए When Paul तो ये Yonggi प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक साइकिल, एक चेयर और एक टेबल चाहिए. क्या चाहिए? एक साइकिल, एक टेबल और एक चेयर. He was praying, Lord, I need a cycle, a table, and a chair. प्रार्थना करते रहे. प्रार्थना 1 साल हो गए, praying 2 साल हो 1 गए, year, कोई नहीं, 2 ना years. साइकिल आई ना टेबल चेयर आई. No cycle, no तो table, गुस्सा हो गया chair. एक दिन. Then he was angry. बोले प्रभु तू अगर मुझे साइकिल नहीं दे सकता, एक और चेयर टेबल नहीं दे सकता, मैं क्या और मांगू? He said, Lord, if you can't give me a cycle, a chair, table, what should I ask you? And the Lord spoke to him and he said, my son, as a father loves to do things for his kids, I love to do things for my kids. Things for his kids, I love to do things for my kids. पिता ने उनसे बात की, कहा मेरे बेटे जैसे एक पिता को अपने बच्चों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों के लिए चीजें करना. But you have to understand how I function. And he began to teach him faith. लेकिन तुम्हें सीखना होगा मैं कैसे काम करता हूँ. और वो उनको विश्वास सिखाने लगे. और प्रभु ने कहा तेरी प्रेयर बिल्कुल वेग है. And the Lord said, your prayer is vague. What cycle? कौन सी साइकिल चाहिए? Which color? किस रंग की साइकिल चाहिए? Which make? कौन सी कंपनी? This is what he has written in his book. ये लिखा है उन्होंने अपनी किताब में. Which chair? कौन से साल में बनी? कौन सी लकड़ी का भाई? Which कौन सा टेबल? What table? तो ने कहा अच्छा. He said, okay. अब मैं ये टेस्ट करता हूँ. Now I'll test this. तो उन्होंने लिखा, So he wrote, प्रभु मुझे रेड कलर की Lord, I want a red bicycle. अमेरिकन मेड ये कंपनी की साइकिल चाहिए. American made this brand मुझे cycle. महगनी वुड का चेयर टेबल चाहिए. I want a mahogany wood chair table. उन्होंने प्रे करी. He prayed. और प्रे करी. When he prayed, और उसके बाद वो इमेजिन करते थे कि वो रेड साइकिल चला रहे हैं, उस he, टेबल में बैठ रहे हैं. he began to imagine he is riding his red Because cycle. this word imagination in Hebrew comes from the Hebrew word yetzar, Y-E-T-S-A-R, and it means conception या गर्भ धारित होना. The word जब आप तब तक उस चीज को देखते रहो जो आपका उत्तर है. एक समय आएगा जब आप उससे गर्भ धारित हो जाओगे and it will manifest in your life. keep imagining what you are looking for, and the time comes when you conceive it. Okay? So वो उनके ना पड़ोस में लोगों ने चिढ़ाने लगे क्योंकि वो कहते थे
कि मेरे पास एक लाल साइकिल है और एक चेयर टेबल है। बहुत गरीब एरिया में थे, तो बाकी सारे लड़के जो सोसाइटी के हैं वो आ गए। बोला कहाँ है वो चेयर टेबल, कहाँ है? तो बोला वो मेरे गर्भ में है। So all the people in his slum colony, they began to mock him because he said, I have a red bicycle and a chair table in my womb. सो जब वो जाते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पूरे पड़ोस की जो आंटियां हैं, जब वो जाते थे वो करती थी उसको। So he's written in his book all the aunties in his neighborhood चिढ़ाने लगे। But guess what? Do you know? People of faith will always be mocked by others before faith will manifest. अब जानते हैं विश्वास के लोगों को हमेशा ठट्ठे में उड़ाया जाएगा इससे पहले कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट होता है।